جی، کیسے آنا ہوا؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ علاقہ ہے ہمارا اور اس علاقے میں ہم نے بہت ساری قربانی دی ہے، محنت کیا آپ کے پارٹی کے لیے. آج بھی انتظام وہی ہے. سیوریج کا انتظام دیکھیں، پانی دیکھیں روڈوں پہ ہے، اور یہاں پانی جو ہے وہ گھروں پہ نہیں آتا ہے، سڑکوں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو سر آپ کچھ کریں، انتظام اس کو صحیح کریں اور ہمارے لیے بھی سوچیں، اس علاقے کے لیے بھی سوچیں. اسی لیے ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے علاقے کے لیے. یہ کام تو میں کروا دیتا ہوں، لیکن آپ کی کمیونٹی سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو ذرا بتائیں مجھے۔ سر فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو جتایا ہم نے، آپ کو الیکشن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں فائدہ کیا ہوگا. آپ ہمارے لیے کچھ کریں تو صحیح، پھر ہم دیکھیں آپ کو اور کیا فائدہ دلا سکتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوتے، یہ کچھ لے دے کے لوگوں کے منہ بند کروانے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم صاحب کو بولیں گے، کیونکہ نہیں، اصغر صاحب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام اصغر صاحب نے کرنا نہیں ہے، اور اگر آپ ان کو بولیں گے تو معاملات اور بگڑ جائیں گے، کیونکہ میں نے اور آپ نے ایک ساتھ رہنا ہے، اصغر صاحب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اور آپ مل کے یہ معاملات یہیں پہ سولو کریں، تو اس سے ہماری لین دین لگی رہے گی، کیونکہ ہم نے آگے بھی چلنا ہے، اور آپ بے فکر رہے، کام انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اوکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو؟ اصغر بھائی سے ملاقات کرنے آیا تھا، خیریت؟ کیا کام ہے بتائیں آپ. ان سے بزنس کے سلسلے میں ملاقات کرنی تھی۔ جی بتائیں آپ، میں ان کا مینیجر ہوں. آپ جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں مجھے بتائیں. ملاقات تو اصغر صاحب سے ہی کرنی تھی۔ آپ مجھے بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا. اب دیکھیں نا، یہ بزنس ہے اور بزنس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اب بزنس کی باتیں مینیجر سے ڈسکس نہیں کی جاتی، وہ ڈائریکٹ اونر سے کی جاتی ہے، تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ آپ آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں خود دیکھتا ہوں، تو آپ اپنی پریشانی بتائیں مجھے. آپ پلیز انہیں بلائیے۔ اچھا چلیں. میں بلاتا ہوں. ارے اصغر بھائی میں ملک ٹھیک صاحب آئے ہیں ہمارے در پہ. میں وہاں بیٹھا کیا ہوں۔ بات ہے، بیٹھو 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 بیٹھو. کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات کرنے آئے ہو، ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی تم بتاؤ گے تو زیادہ اچھا لگے گا. بیٹھو. ہم بیٹھ گئے. اب بتائیے کیا ہے، کیسے حال ہیں، کیا کر رہے ہو. پتہ ہے وہ تو ہمیں تم کیا کر رہے ہو، ہمارے پاس کیوں آئے ہو خود بتاؤ. ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو، لیکن اگر تم ہمیں بتا دو تو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی. ظاہر ہے تم بھلک ہو، کوئی بھی بات کہنے آئے ہو، ورنہ تمہیں اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے تو تم کیسے آ سکتے ہو؟ اتنا ٹائم کہاں ملتا ہے تم کو؟ آئے ہو تو کوئی بات تو ہے ضرور. اب وہ بتاؤ گے پھر پتہ چلے گا. ہم تو عزت کی باہیں تمہارے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، محبت سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، اور ہماری عاجزی انکساری یہی بات ہے. سر، میں آپ کے پاس بزنس کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، بزنس کے لیے آئے ہیں تو تمہارے اور میرے بزنس میں تو بڑا فرق ہے. نہ تم میرے بزنس میں ہاتھ ڈال سکتے ہو، ساتھ دے سکتے ہو، اور نہ میں تمہارے کسی بزنس میں ساتھ دے سکتا ہوں. ظاہر ہے اگر تمہارے بزنس میں ساتھ دوں گا تو تم جیسا بننا ہوگا، اور اگر میرے بزنس میں تم ساتھ دو گے تو مجھ جیسا بننا ہوگا. اور نہ میں تمہارے جیسا بن سکتا ہوں، اور تم تو بن ہی نہیں سکتے، تم تو بن ہی نہیں سکتے. میں پھر بھی تمہارے ساتھ کچھ کوآپریٹ کر لوں گا، لیکن بزنس میں کام نہیں کر سکتا. تمہارا بزنس مجھ سے بہت الگ ہے. تمہارا بزنس عزت نہیں ذلت دیتا
मेरा बिजनेस इज्जत देता है, लोगों के काम आता है, लोगों के काम आता हूँ तो लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं। करप्शन, गलत काम, ये जो नशेबाजी की चीजें हैं या कुछ चीज मंगवानी, नहीं कर सकता। मेरे लायक इसके अलावा कोई काम हो तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। रहा बिजनेस का, तो हम दो मुख्तलिफ लोग हैं जो कभी नहीं मिल सकते, और मिलने के लिए दोनों में से एक को अपना जमीर मारना होगा। तुम जमीर मारोगे तो अच्छाई की तरफ आओगे, मैं जमीर मारता हूं तो गलत जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये ऊंची, ये परवान, ये सब मुझे अल्लाह ताला ने दी है, इज्जत दी है। सिर्फ एक ज़ात, उस ज़ात का नाम है अल्लाह, और उसने मुझे हमेशा इज्जत का मकाम दिया है, इज्जत की रोटी दी है, जो मैं लोगों का ख्याल भी करता हूँ और लोगों पे काम भी आता हूँ, और काम मेरा बिल्कुल आज़ाद है। तुम क्या करते हो ये तुम समझ में नहीं आता है कि तुम मुझे अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए कैसे कह रहे हो। मुख्तलिफ लोग हैं, तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मदद चाहिए तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। लेकिन मेरी मदद गलत बिजनेस में नहीं होगी। तुम जो काम करते हो उस सिलसिले में अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो समझ लो मैं तुम्हारा शरीक बन गया, और मैं बिजनेस में पार्टनरशिप ऐसा चाहता नहीं हूँ, करता। मैं मदद। हाँ, तुम्हारे बिजनेस को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वालदैन के कहने पर जो तरबियत है मेरी उसके मुताबिक चलता हूँ। मुझे कोई हिला नहीं सकता। मदद कर देता हूँ, लेकिन मदद अच्छे कामों की, भलाई। तुम कोई अच्छा काम करते हो, मेरी मदद पूरी है। लेकिन तुम अगर ये जहन में बिठाए हुए हो तो मैं तुम्हारे बिजनेस में शामिल होकर कारोबार को बढ़ाऊं, तो ये हराम के कारोबार में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम रुक जाए, हाँ, और मेरा काम चलता रहता है। जानता हूँ। जो इंसान जो काम करता है तो उसके लिए कुछ खांचे भी निकलते रहते हैं, और इस माशरे में मुझ जैसे भी लोग रहते हैं और तुम जैसे भी लोग रहते हैं। मुझ जैसे लोग मेरा साथ देंगे, तुम जैसे लोग तुम्हारा साथ देंगे, और वो हर चीज करेंगे जो तुम चाहोगे। मैं मैं नहीं हो सकता, और ना मुझ जैसे हो सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये रिकॉर्ड है मेरा, ये रिकॉर्ड है मेरा। इस रिकॉर्ड में एक चीज वाज़ेह है कि मैं सही काम करता हूँ जो इज्जत का भी होता है, लोगों की मदद के लिए भी होता है। इस माशरे में बेइंतहा ऐसे लोग हैं कि जो मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। बस हाँ, बिजनेस करना चाहते हैं। चले हम यहाँ बैठकर आपको समझाते हैं। सरदार साहब, अच्छा, बताएं। सरदार साहब 2 फैक्ट्रियों का मालिक है। ये लोग, हाँ, ये हम तो हमेशा अपने आने वाले लोगों को इज्जत देते हैं, और ये मेरी तरफ से आपकी। अब रहा काम, बिजनेस, उसमें शेयर करना या हेल्प करना या मदद करना, तो ये मुझसे इसलिए नहीं होगा कि मैं करप्शन का काम नहीं करता। मैं लोगों को बनाता हूँ, बिगाड़ता नहीं। मुझे दुआएं चाहिए, बस दुआएं नहीं, और इसीलिए मैं फ्रेश रहता हूँ। लोगों से पूछो तुम, कोई शख्स नहीं कह सकता कि डॉन हूं लेकिन काम गलत नहीं करता, क्योंकि मैं अगर गलत काम करूंगा तो मैं भी तुम्हारी तरह बुझा बुझा सा रहूंगा, लोगों से मदद मांगूंगा, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा निकलता है, फिर वो दर दर के ठोकरें खाता है। इसलिए कि उसकी राह में बददुआएं, बड़ी बददुआएं लिखा है। और हम जो काम करते हैं, कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे, और लोगों के काम आएंगे। ये हमारा कानून है, हमारी सोच है, बस। इसके अलावा मेरा मकसद था। ठीक है, तुम्हारा मकसद जो भी हो, मैं तो तुम्हें भी कहूंगा कि तुम भी अच्छी और नेकी की राह अपना लो। तुम देखना उसमें कितना सुकून मिलता है, फिर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम समझ जाओगे कि अच्छी राह, सीधी राह जब इख्तियार करता है इंसान, तो यकीनन
उसकी राह में मुश्किलात भी आती हैं। तो यहाँ पर तुम्हें सब्र की तौफीक अल्लाह देगा। सब्र करोगे काम चमकेगा और सुकून रहेगा, सुकून मिलता रहेगा। और सही। रहा गलत काम जो तुम सोच कर आए थे मेरे पास, उसमें तो मैं नहीं। खाओ पियो ऐश कियो करो, बस ये है। लोगों के साथ इज्जत से पेश आओ, काम ऐसा मत करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें गालियां दें, बददुआएं दें। क्लियर रखो अपने आप को, समझ रहे हो साफ ना मलक साहब? यही तो बात समझने वाली है। खान समझ गया, तुम नहीं समझा। और इस माशरे में जितने भी लोग हैं और गलत रास्ते इख्तियार करते हैं तो उनको गड़े में गिरना पड़ता है। और जो सुकून और मोहब्बत की राह इख्तियार करता है जिसमें इज्जत होती है तो उससे किसी की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होती। और वहां उसको मिलती है दुआएं। दुआओं से फिर आदमी जाता है बुलंदी पर। अल्लाह भी खुश, अवाम भी खुश। अब मेरे पास अगर कोई कारोबार चमकता है तो आप क्या सोचते हैं कि मैं जमा करता हूँ? नहीं, सवाल ही करते हैं। मैं उन्हीं में से उन लोगों की मदद करता हूँ जो मेरे अपने हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ बेचारे करना चाहते हैं लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है, या उनके रास्ते में रोड़े अटका दी जाते हैं। फिर वो मजबूर हो जाते हैं। मजबूर होकर फिर मुझ जैसे के पास आते हैं तो मैं उनसे मांगने नहीं देता, मैं उनसे पहले ही समझकर उनकी हेल्प करता हूँ। ये है मेरा कानून, ये है मेरा उसूल। और तुम अगर इसी राह पे आ जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। वरना तो फिर तुम्हारी गाड़ी चल रही है तो चलती रहेगी, लेकिन इसका एंड जो है बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब है, जो सुकून भी नहीं देगा, उजाड़ देगा आपको, आपकी लाइफ को। सही कह रहे हैं। ये है बात मेरे। हाँ, सही कह रहे हैं। इनकी बातों पे मैं जरूर सोचूंगा। सोचोगे, अमल करोगे तो तुम्हारा फायदा है, मेरा नहीं। हाँ, मुझे खुशी जरूर होगी कि हाँ मेरी बात मलक ने मानी। आप सही कह रहे हैं, आप सारी बातें सही है, लेकिन तुम अभी तो कह रहे हो सही है, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं मानोगे, करोगे वही जो तुम्हारी हैबिट में शामिल है, जो तुम्हारी फितरत में शामिल है। और फितरत नहीं बदलती, किसी की भी नहीं बदलती। अब कुछ भी कर लो, इसके लिए बड़ी मुश्किल सोचें आएंगी। तुम झटकोगे उस सोच को, निकालोगे अपने जहन से और यही सोचोगे जो कर रहा हूँ उसी को करता रहूं, इसमें बहुत पैसा है। तुम पैसा देख रहे हो, इज्जत नहीं देख रहे हो। मरने के बाद भी इज्जत चाहिए इंसान को, और उसी इज्जत के लिए इंसान मेहनत करता है ईमानदारी से। और ईमानदारी अल्लाह के करीब करती है। तुम माशाअल्लाह अच्छी हो, खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर बहुत गुण हैं, लेकिन राह तुमने गलत इख्तियार की। खान मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, खान सही कह रहा हूँ ना? अब ये बंदा अच्छा है लेकिन इसके काम गंदे हैं, तो मैं कैसे साथ दूंगा? हेल्प कर दूंगा। खान जो मांगे तो दे देना, लेकिन इसका कारोबार में शामिल मत होना। तू मेरा सुन, मैं गंदे काम में शामिल नहीं होता। अगर मैंने साथ दिया तो समझ दो मैं भी गंदा हो गया। मेरी गलत बातें तो बुरी लग रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें सही राह दिखाना चाहता हूँ। वो राह जो तुम्हें इज्जत के साथ साथ अबदी मौत ऐसी देगी जिसमें अल्लाह भी खुश होगा और लोगों की दुआएं भी तुम्हारे साथ शामिल होंगी। ये काम करते हो गलत, कब तक कमाते हो पैसा? बहुत कमा लोगे। सही है। लेकिन इज्जत नहीं मिलती, इससे इज्जत माशरे में नहीं मिलती। सामने तो तुम्हारे हाथ चूम लेंगे, मोहब्बत करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और जब तुम निकलोगे वहां से वही लोग तुम्हें गालियां दे रहे होंगे, इसलिए कि तुम्हें नहीं देख रहे, तुम्हारे काम को देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। तुम अपने काम की वजह से मशहूर हो, मैं अपने काम की वजह से मशहूर। मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा शरीक नहीं बन सकता। सही। जाओ, आप बस तुम जाओ, सोचो। बात समझ आ गई ना आपको? हाँ, ठीक है, सोचो, समझो। कोशिश करता हूँ। तो अब ये शायद तुम्हें ये इज्जत पास नहीं आए, इसीलिए तुमने उतार दी। हाँ, चलता हूँ मैं। ठीक है, जाओ, शाबाश।
मैंने था समझाना, मैंने समझा दिया, अब नहीं मानता है तो इसकी मर्जी है, अब ये जो कुछ करेगा वो करता रहे। करता रहे, हमें इससे क्या, हम उनसे कौन सा माल का लेंगे या हमें ये कोई फायदा पहुंचा देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हम इज्जत से कमाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं,